السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ سردیاں اچھی گزر رہی ہیں نا؟ شاباش ماشاءاللہ۔ تو ہم اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کا، جو ہمارا روزمرہ چلنے والا ٹاپک۔ ہم حفظان صحت کے رہنما اصول کے تحت صحت مندانہ زندگی گزارتے ہوئے ہیلتھ سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں جناب قبلہ شیخ شاکری صاحب کا دلی شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے ہمارے ہیلتھ ایجوکیشن کے سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پر عملی اقدام کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا نا کہ دانتوں کی صفائی کے حوالے سے، تو انہوں نے آپ لوگوں کے لیے ٹوتھ برش اور اعلیٰ کوالٹی کے ٹوتھ پیسٹ کا بندوبست کر کے مہیا کیا، جس کا ہم ان کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہم شیخ صاحب اور ان کے معاونین اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا بھی دلی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توفیقات کے خیر میں اضافہ فرمائیں، کہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر طبی امداد کے لیے فری میڈیسن اور یہاں پہ ڈسپنسری کا قیام عمل میں لایا۔ تو اللہ پاک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ تو پیارے بچوں، ہم مختصراً ان کی آنکھوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آنکھیں بہت ہی ہمارے جسم کا کیا ہے، ایک انمول نازک اور قیمتی تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ابھی آنکھوں کے بارے میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی آپ لوگ اسکولوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لڑکے جو ہے نا باہر کھیلتے ہیں، جس سے کبھی بال لگ کے آتا ہے، کبھی کوئی لکڑی سے کھیلتے ہوئے تلوار بازی، کبھی کوئی پنسل، کوئی چیزوں سے کھیل کے جو اکثر آنکھوں کے زخم سے ہسپتال اور کلینک میں آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی احتیاط کرنا ہمیں بہت ہی ضروری ہے، اور اس کی قدر کرنا بھی ہمیں انتہائی ضروری ہے۔ تو مختصراً ہم آنکھوں کے حفاظت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آنکھیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ تو اس کی حفاظت ہم نے کس سے؟ بیماریوں سے بھی ہم نے اس کو بچانا ہے، اور دیگر عوامل جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے بھی ہم نے بچانا ہے۔ تو آنکھوں کے لیے، آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کی ضروری ہے کہ متوازن غذائیں کھانے کی ضرورت ہے۔ متوازن غذا میں کیا ہوتی ہے؟ وٹامنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وٹامنس آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن سی ہوتی ہے۔ تو متوازن غذا میں جو سب سے زیادہ آنکھوں کی بینائی کے لیے ضرورت ہے، وہ وٹامن کن چیزوں میں ہیں وہ ہم بتائیں گے۔ سب سے زیادہ یہ کیا ہے؟ سبزیوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھلوں میں ہوتا ہے، پھر انڈے میں ہے، پھر کیا ہے؟ مچھلی میں ہے، دودھ میں۔ جب یہ ہم غذائیں کھائیں گے تو اس میں تمام وٹامنس موجود ہوتے ہیں، جو آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے، جو ہماری آنکھوں کی بینائی کو حفاظت بھی دیتی ہے اور بہتر بناتی ہے، اور اس سے ہماری نظر بھی بہت اچھی ہوتی ہے، جس میں گاجر، پالک، ٹھیک ہے نا، انڈا، دودھ، مچھلی اور پیلی سبزیاں، ان چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی روزمرہ کی غذا میں استعمال کرنا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ کیا کیا استعمال کرنا چاہیے؟ ایک بتائے، گاجر کیا استعمال کرنا چاہیے؟ شاباش۔ دوسرے پھل میں کیا ہے؟ مالٹا، ٹھیک ہے۔ سبزیوں میں کیا ہے؟ پالک، ٹھیک ہے، پالک، اور اس کے علاوہ پیلی سبزیاں، ٹھیک ہے۔ کون سی سبزیاں؟ پیلی سبزیاں۔ اور یہ ساری چیزیں ہم روزمرہ اپنی غذا میں کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگی؟ ہماری آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور جس سے ہماری آنکھوں کی حفاظت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آنکھوں کی بینائی کے لیے اور بھی بہت سارے عوامل ہیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور کمزور ہو سکتا ہے۔ بالفرض ہم پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بالکل مکمل سیدھا بیٹھنا چاہیے۔ سیدھا بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے یا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں
मोबाइल देखते हैं, कैमरा अपना कंप्यूटर देखते हैं, तो कम से कम हमारे और किताब और कंप्यूटर और उसके दरमियान क्या होना चाहिए, मुनासिब फासला होना चाहिए। बिल्कुल आंखों के करीब लाके कोई भी चीज़ नहीं देखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। इससे क्या होता है, आंखों की बेनाई पे असरअंदाज होता है। तो मुनासिब फासला होना चाहिए। एक तो ये हो गया प्रिकॉशन कहते हैं इसको, ठीक है ना, एहतियाती तदाबीर। दूसरा क्या होता है, जब भी हम मुतालिया करें तो उस वक्त मुनासिब रोशनी होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। डीम लाइट में, बीमारी में, थकावट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। डीम लाइट जो कमज़ोर लाइट, अंधेरा और थकावट में, बीमारी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और हमें जब भी हम मुतालिया करें लेट कर ना पड़े, बिल्कुल हम लेट के पढ़ते ना यूं करके, उससे भी हमारे आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे बेनाई कमज़ोर होने का खतरा होता है। तो हमने लेट के नहीं पढ़ना है। तीसरी, जब भी पढ़ते हैं लाइट क्या होना चाहिए, पीछे से आना चाहिए, सामने नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सामने इस तरह आंखों में नहीं लगना चाहिए, लाइट आपके पीछे से आ जाए या बाएं साइड से आपके किताब पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब बल्ब की तरफ सीधा होके पढ़ेंगे, वो आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है, समझ में आया। तीसरी चौथी बात ये है कि जब भी आप लोग पढ़ते हैं ना, मुतालिया करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल आंखें यूं करके बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है। पढ़ने के बाद थोड़ा सा 3 से 4 मरतबा इस तरह आंखों को ब्लिंक करना है, झपकाना है। ब्लिंक करने से क्या होता, आंखें खुश्क नहीं होती है, इसके जो आंसू होते हैं ना उसको नमी होती है, तो वो तरोताज़ा हो जाती है, ठीक है। आंखों जब भी पढ़ते हैं ना, मुकम्मल यूं घंटा इसी तरह 15 मिनट इसी तरह मुकम्मल ना पढ़े। जब भी कोई 2 से 4 लाइन पढ़ते हैं तो आंखों को 2 से 3 मरतबा इस तरह करने से नमी होती है, आंखें तरोताज़ा हो जाती है। समझ में आया। पांचवी बात ये कि जब धुआं हो, ठीक है ना, घर में धुआं होता है या बाहर, धुएं में करीब ना बैठे हैं। गिरद व गुबार हवा चलती है, मट्टी चलती है, उस वक्त भी हमें एहतियात करना है। बहुत तेज सर्दी में भी एहतियात करना है, बहुत तेज गर्मी में भी एहतियात करना है, जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। किस इसमें धुआं से, गिरद व गुबार, अच्छा तेज सर्दी, तेज गर्मी से भी हमने क्या करना है, अपनी आंखों को हिफाजत करना है। आंखें क्योंकि बहुत ही अनमोल और कीमती और नाजुक और जो है हमारे जिस्म में, ठीक है, इसकी अहमियत को जानना है, ठीक है, इसके लिए एहतियात करना है। और चौथी बात, जब भी आपको पढ़ते वक्त सर में दर्द हो रहा हो, आंसू आ रहे हैं, बार बार आंसू आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा हो, उस वक़्त आप अपनी नज़र लाजिमन माहिर डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर से लाजमी अपनी नज़र को चेक कराएं। जब भी सर में दर्द हो, मुतालिया करते वक्त, पढ़ते वक्त आंसू आ रहे हों, तो आपने अपनी नज़र को क्या करना है, चेक करवाना है। सातवीं बात, जब भी आँख में कोई चीज़ जाए या कोई चोट लग जाए तो फ़ौरन इस तरह रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, ठीक है ना। मज़ीद उसमें हो सकता है कोई शीशा जाए, कोई पत्थर जाए, कोई लकड़ी का जर्रा जाए, तो वो आगे क्या करेगा, आपकी आंख को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह देखें, अगर निकलता है कोई टिश्यू पेपर साफ चीज़ से निकलता है, ठीक, ना छेड़ें। अगर नहीं निकलते हो डायरेक्ट फिर क्या करना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। या बीमारी हो, आंख में कोई बीमार हो या तकलीफ हो या कोई चीज़ जाए, तो उस वक्त भी आपने रगड़ना नहीं है, अपने तौर पे कोई दवाई उसमें डालना नहीं है, आपने डॉक्टर से रुजू करना है। सातवीं बात, आपने आंखों को क्या करना है, बार बार धोना है। बार बार जितना धोएंगे ना, इतने आंखें तरोताज़ा हो जाती है, ठीक है। अब जो नमाज पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वुज़ू करते हैं 5-6 मरतबा, तो आंखों में पानी जाता है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप छोटे हैं, अगर नमाज में अभी आप लोगों को वो नहीं हो रहा, तो आपने अपने हाथों को सही तरह धोया, धोने के बाद फिर आपने बार बार उसको धोना है आंखों को। और 7वीं 8वीं बात की, कोई भी फेंके हुए चीज़, गिर्द गुबार से आंखों को मलना नहीं है, साफ नहीं करना है। साफ टिश्यू पेपर के अलावा, साफ रुमाल के अलावा कोई भी चीज़ से नहीं। मट्टी से खेल के, खाना खा के या कोई चीज़ काट के फिर फौरन हाथ को आंखों में नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, फिर आंखों में तकलीफ हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया, कुछ चीज़ें पता चली ना। और इन चीज़ों को आपने क्या करना है, रोज़ाना रूटीन में अमल करना है। तो इससे क्या होगी, हमारी बेनाई के लिए सबसे ज़रूरी हमने क्या कहा, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा में कौन कौन से है, नंबर 1
फल, फ्रूट, अंडा, दूध और सब्जियां। फिर उसके बाद मछली। सब्जियों में क्या है, पालक, गाजर, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं ना, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात जो एहतियात करना, अभी आप लोग बहुत फारिग हो गए ना स्कूल से, तो आप लोगों के पास टाइम है, आम ने बिल्कुल लकड़ी से नहीं खेलना है। इस तरह जो तलवारबाजी करते हैं ना, अचानक आंख में लग गया फिर तो आंख दोबारा वापस नहीं आएगा। एक दूसरी बात, आप लोग बाहर अक्सर देखने में आ रहे हैं, रोड में, मैदान में बॉल मारते हैं डायरेक्ट आंखों पे ना, एक दूसरे को मारते तो वो आंख में लग गया तो उस वक्त भी नुकसानदायक। इस तरह का खेल नहीं करना। चौथी बात, जो आप लोग अक्सर पेंसिल या लकड़ी से अक्सर इस तरह के यूं लगाते हैं, यूं देखो कहते हैं, तो अचानक पेंसिल का नोक वगैरह लग सकता है। इन चीज़ों का आंखों के साथ कभी भी खेलना भी नहीं है, इस तरह का कोई हंसी मजाक नहीं करना है, क्योंकि ये आंख बहुत कीमती चीज़ है, ये दोबारा रिपेयर नहीं होती है, ठीक है ना। एक दफ़ा जाने के बाद अगर हड्डी टूट जाए तो जुड़ जाती है ना, मगर आंख का मसला दोबारा हल नहीं होता है। फिर हमें फिर पूरी दुनिया को देखने के लिए, दुनिया के जो है मनाजिर देखने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए, मोबाइल के लिए काम करने के लिए, बाहर जाना आना जाना सारा हमें सपोर्ट क्या करता है, ये हमारा कैमरा है, ठीक है ना। तो ये हम इससे हम हाथ धो बैठेंगे अगर इस तरह की गैर ज़रूरी हरकतें करेंगे। तो आप लोगों ने इस तरह की खेल कूद या इस तरह के मजाक बिल्कुल नहीं करना है। किस चीज़ से, एक तो तलवारबाजी, लकड़ी से खेलने वाला चीज़, ठीक है ना, एक दूसरे को मारने वाले चीज़, पत्थर से मारना, और एक और है, और आप लोग अक्सर वो पत्थरों पे इस तरह करके एक दूसरे को मारते हैं ना, वो पत्थर की वो भी निकल के आंख में जाते, वो भी नुकसानदायक है। इस तरह की चीज़ें हथौड़ी से हो या पत्थर पे पत्थर मार के भी जो चीज़ें निकलती है, या आग वगैरह से खेलते हैं ना, इस तरह की चीज़ों से हमने क्या करना है, एहतियात करना है।